Hello students, this is your video number 4 of chapter 9, The Earth Our Habitat. I am extremely sorry that by mistake the video number 4 which I had sent earlier was the repetition of video number 3. So I request you to just follow this video and continue the chapter further. So page number 53, types of motions of the earth. Like other planets, there are two types of motions of earth also, rotation and revolution. Rotation, as the top rotate on its axis, in the same way earth also rotate on its axis from west to east direction. This circular motion of earth is called daily motion. It is also called rotation. The earth completes a cycle of 1670 km per hour on equator. It takes 24 hours to complete this cycle. This speed has played an important role in shaping the earth's orange shape. तो अन्य ग्रहों की तरह पृथ्वी के भी दो प्रकार की गतियां हैं, एक है रोटेशन और रिवॉल्यूशन। रोटेशन, जिस तरह से एक लट्टू टॉप अपने एक्सिस पर घूमता है, उसी प्रकार पृथ्वी भी अपनी धुरी यानी कि एक्सिस पर घूमती है। कैसे घूमती है? पश्चिम से पूर्व की दिशा की ओर। पृथ्वी की इस गोलाकार गति को डेली मोशन कहते हैं और रोटेशन भी कहते हैं। पृथ्वी अपना एक चक्कर 1670 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पूरी करती है। इस चक्र को पूरा करने में 24 घंटे लगते हैं, 24 आवर्स। इस गति ने पृथ्वी को ऑरेंज शेप देने में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। रिवॉल्यूशन, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन एज इट रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस. It takes about 365 days for the earth to complete its revolution. We call this period as a year. An imaginary way to Earth's rotation around the sun in the space has been determined, which is known as orbit. Along with this, the Earth do not move in circular path, rather it moves in elliptical orbit. Distance between sun and earth is not same throughout the year. The earth rotates on its axis by making an angle of 23.5 degree on its axis and 66.5 degree along its orbit. Due to this movement of earth, the seasons occur and day and night are extended and shortened. तो रिवॉल्यूशन, पृथ्वी सूर्य की चारों ओर घूमती है। क्योंकि वो अपने एक्सेस पर घूमती है, अर्थ को सूर्य के आगे पीछे एक चक्कर काटने में लगभग 365 डेज़ लगते हैं और ये एक चक्कर काटने की जो प्रक्रिया है उसे हम रिवॉल्यूशन कहते हैं और इस अवधि को एक वर्ष कहते हैं, 1 ईयर। अंतरिक्ष में सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के घूमने का एक काल्पनिक तरीका निर्धारित किया गया है, इमेजिनरी पाथ, जिसे ऑर्बिट के रूप में जाना जाता है। इसी के साथ पृथ्वी गोलाकार रास्ते में नहीं चलती, सर्कुलर फॉर्म, गोलाकार यानी सर्कुलर फॉर्म में नहीं चलती, बल्कि अंडाकार, एलिप्टिकल, द वर्ड एलिप्टिकल है, अंडाकार ऑर्बिट में घूमती है। डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ is not same throughout the year. The earth rotates on its axis by making an angle of 23.5 degree on its axis and 66.5 degree along its orbit. Due to this movement of earth, the seasons occur and day and night are extended and shortened. तो सूर्य और पृथ्वी के बीच की जो दूरी है वो पूरे वर्ष एक जैसी नहीं होती। पृथ्वी अपनी दूरी पर 23.5 डिग्री की कोना बनाकर, दूरी बनाकर घूमती है और 66.5 डिग्री पर परिक्रमा करती है। पृथ्वी की इस गति के कारण ही सीजन्स, मौसम
समर, विंटर एंड रेनी सीजन्स, दिन और रात बढ़ जाते हैं या छोटी हो जाती है। डे एंड नाइट, ड्यू टू डेली मोशन ऑफ द अर्थ, डे एंड नाइट अकर as the earth is tilted and rotate on its own axis. The sun shines only on half of it and the other half is dark. If earth would not have rotated, then on one side only light would have been there, while on the other side it would have remained dark. तो अर्थ के डेली मोशन के कारण ही दिन और रात होते हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि पृथ्वी जो है वो टिल्टेड यानी झुकी हुई है और ये अपनी धुरी यानी कि एक्सिस पर ही घूमती है, तो सूर्य उसके आधे भाग पर ही चमकता दिखाई देता है और दूसरी तरफ अंधेरा होता है। बट इट इजंट सो। Thus every part of earth experiences light from darkness and darkness. Now turn your page number 54. Darkness from light in every 24 hours. Because of it, every part of earth experiences morning, afternoon and evening. As the earth is tilted on its axis, we find difference in the length of day and night. अगर हमारी पृथ्वी नहीं घूमती है तो एक तरफ केवल प्रकाश ही होगा जबकि दूसरी तरफ अंधेरा ही होगा। बट ऐसा नहीं है। पृथ्वी का इस प्रकार प्रत्येक भाग है वो अंधकार और अंधकार से 24 घंटे में प्रकाश का अनुभव करता है। इसकी वजह से पृथ्वी का हर हिस्सा सुबह, दोपहर, शाम का अनुभव करता है। जैसे कि पृथ्वी अपनी एक्सिस पर झुकी है, इसीलिए हम रात और दिन की लंबाई में भी अंतर पाते हैं। 9.11 फिगर है, उसमें डे और नाइट दिखाई दे रहे हैं। जो सन रेज है वो वहाँ पर जहाँ पर गिरते हैं वहाँ पे दिन है और जहाँ पर पीछे की तरफ जो ब्लैक पार्ट दिखाई दे रहा है वहाँ पे अंधेरा है, वो है रात। Sun rays fall directly on Tropic of Cancer on 21st June and on Tropic of Capricorn on 22nd December. Where the sun rays fall directly and in the adjacent areas, the days are longer and the nights are shorter. Where the sun rays fall diagonally, the days are short and nights are long, while days and nights are of same length on 21st March and 23rd September. तो 21 जून को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और 22 दिसंबर को ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर सूरज की किरणें सीधी पड़ती हैं। सूर्य की किरणें आसपास और सीधी पड़ती है, वहाँ दिन जो होता है वो लंबा है और रात छोटी होती है। जहाँ पर सूर्य की किरणें तिरछी डायगोनली स्लांटिंग पड़ती है, वहाँ पर दिन छोटे और रातें लंबी होती है, जबकि दिन और रात 21 मार्च और 23 सितंबर को की दिन लंबाई उसकी समान होती है, यानी इक्वल सेम लेंथ होती है। इन 9.12 फिगर में लॉन्ग और शॉर्ट डेज जो है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में छोटे हैं और कब बड़े होते हैं, यहाँ पर इक्विनॉक्स यानी कि 21 मार्च और 23 सितंबर। अभी इन द डायग्राम यू कैन सी दैट इक्विनॉक्स डे नाइट सिमिलर 21 मार्च। तो इक्विनॉक्स का मतलब क्या है कि दिन और रात इक्वल होते हैं। इक्विनॉक्स यानी दिन और रात इक्वल होते हैं। इसी प्रकार अगर आप डायग्राम में देखेंगे लेफ़्ट हैंड साइड पे, तो 21 जून को सबसे लंबा दिन बताया गया है, जिसको हम दक्षिणयान कहते हैं। 22 दिसंबर को, जो कि राइट हैंड साइड पे है डायग्राम में, वो सबसे छोटा दिन है, जिसे हम उत्तरायण कहते हैं। नाउ पेज नंबर 55। Seasons. As the earth is tilted on its axis, one by one,
Northern hemisphere and southern hemisphere come in front of sun. The rays of sun fall straight on north or south of equator. Thus, there is a difference in day and night. In the areas where sunshine is for longer time, they experience summer, whereas the areas the sunshine is for shorter time, they experience is winter. Season directly affects human life. तो अब सीजन्स के बारे में देखेंगे। जैसे कि पृथ्वी अपनी एक्सिस पे थोड़ी सी झुकी हुई है, इसीलिए एक के बाद एक नॉर्दर्न और सदर्न हेमिस्फीयर सूरज के सामने आते हैं। सूरज की किरणें इक्वेटर के नॉर्थ या साउथ पे एकदम सीधी पड़ती है, वर्टिकल सीधी पड़ती है। इसी प्रकार दिन और रात में अंतर आता है। जिन क्षेत्रों में धूप अधिक समय के लिए होती है वो गर्मियों का अनुभव करते हैं, और जिन क्षेत्रों में कम है वहाँ पर सर्दियों का अनुभव होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि मौसम जो है वो सीधे मानव जीवन को प्रभावित करती है। उत्तरायण, the direct rays of the sun begin to fall towards north of equator. Thus, northern solstice occurs on 22nd December. Sun enters Makar Rashi on 14th January. So it is called मकर संक्रांति। तो सूर्य के सीधे किरण इक्वेटर के उत्तर नॉर्थ की ओर गिरने लगती हैं। इस प्रकार उत्तरी संक्रांति यानी कि 22 दिसंबर को होती है। 14 जनवरी को सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है, इसीलिए हम उसे मकर संक्रांति कहते हैं। दक्षिणायन, 22nd June, the direct rays of the sun shift from Tropic of Cancer towards south of equator and it is called दक्षिणायन। तो 22 जून से सूर्य की सीधी किरणें ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से इक्वेटर से होती हुई साउथ में जाती है, इसीलिए इसे दक्षिणायन कहते हैं, यानी कि वो दक्षिण की तरफ प्रवेश कर रही है। Then equinox, sun and the equator intersect each other twice in a year. This intersection is called equinox. During equinox, sun moves towards northern hemisphere. So from 22nd March, length of days increases and nights become short. On 21st June, longest day and shortest night is experienced in northern hemisphere. वर्ष में 2 बार सूर्य और इक्वेटर एक दूसरे को काटते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं, तो इसे इक्विनॉक्स भी कहा जाता है। इक्विनॉक्स के दौरान सूरज नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की ओर बढ़ता है, इसीलिए 22 मार्च की लंबाई बढ़ जाती है और जो रात है वो छोटी हो जाती है। 21 जून को सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में उसका अनुभव किया जाता है। As the sun moves towards southern hemisphere from 24th September, length of the days start increasing and nights become shorter. On 22nd December, days are longest and nights are shortest in southern hemisphere. During the year on 21st March and 23rd September, sun rays fall straight on equator, because of which nights and days are equal. It is called equinoxes. जैसे ही सूरज सदर्न हेमिस्फीयर की ओर बढ़ता जाता है, 24 सितंबर की लंबाई बढ़ने लगती है और रातें छोटी होने लगती है। 22 दिसंबर को दिन जो है वो सबसे लंबे होते हैं और रात सबसे छोटी हो जाती है। सदर्न हेमिस्फीयर वर्ष के दौरान 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्योदय होता है और सूर्य के किरण सीधे इक्वेटर पे गिरते हैं। इसकी वजह से दिन और रात समान होते हैं। इसको हम
इक्विनॉक्स के नाम से जानते हैं। लीप ईयर, सिंस 1 year of earth is 365 days and 6 hours, but it is difficult to calculate 1/4 of the day, so we count year as having 365 days. In order to compensate, remaining 6 hours are added to the month of February every 4 years. That is, February has 29 days in place of 28 days. We call that year leap year. पृथ्वी को एक साल पूरा करने में 365 दिन और 6 घंटे लगते हैं, लेकिन दिन के 1/4 1/4 की कैलकुलेशन करना बहुत ही मुश्किल है। इसीलिए हम वर्ष को 365 दिन मानते हैं। बाकी के 6 घंटे की भरपाई के लिए हर 4 साल में फरवरी के महीने में जोड़ दिया जाता है, यानी फरवरी के महीने में 28 दिन के स्थान पर 29 दिन हो जाते हैं और उस साल को लीप ईयर के नाम से जानते हैं। नाउ टर्न योर पेज नंबर 56. Eclipse. We get light from sun and moon. Sun is self-illuminated and shines brightly, while the moon is illuminated with the light of the sun. Illumined part is seen on earth on different days, an occasion when moon or the sun seem to be completely or partially disappearing, because one of them in passing between the other and the earth. In such situation it is eclipse. एक्लिप्स यानी कि ग्रहण, एक्लिप्स को हम ग्रहण के नाम से जानते हैं। हमें सूर्य और चंद्र से प्रकाश मिलता है। सूर्य के पास अपना स्वयं का प्रकाश है, सेल्फ इल्यूमिनेटेड, और वो चमकता है, और चंद्र सूर्य के प्रकाश से चमकता है। तो अलग अलग दिनों में यह चंद्र का भाग दिखाई देता है। एक ऐसा समय जब चंद्र और सूर्य पार्शियल आधे रूप से गायब हो जाते हैं, क्योंकि तब उनमें से एक उसके ऊपर से गुजर रहा है, पास हो रहा है, और दूसरी ओर पृथ्वी के बीच में हो, तो ऐसी स्थिति को हम ग्रहण कहते हैं। सोलर इक्लिप्स. मून इज क्लोज टू अर्थ. इट रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ. समटाइम्स while revolving it comes between sun and earth. At this time, as the shadow of moon constrains, sun is not visible. This event is called solar eclipse. As the moon is very small as compared to sun, it cannot cover whole sun. The solar eclipse cannot be seen all over the world together. Solar eclipse occurs on no moon day, but this event doesn't take place on every no moon day. सोलर इक्लिप्स यानी कि सूर्य ग्रहण, सूर्य ग्रहण के नाम से जानते हैं। चंद्र जो है वो पृथ्वी के नज़दीक है। ये पृथ्वी की चारों ओर घूमता है। कभी कभी परिक्रमा घूमते हुए सूर्य पृथ्वी के बीच आती है, और इस समय जैसे कि चंद्रमा की छाया पड़ती है तो सूरज दिखाई नहीं देता, तो इस घटना को हम सूर्य ग्रहण कहते हैं। अब जो मून है, जो सूरज की तुलना में जो चंद्र है वो बहुत छोटा है, इसीलिए वह पूरे सूर्य को कवर नहीं कर सकता। इस प्रकार सूर्य ग्रहण को पूरे विश्व में एक साथ नहीं दिखा जा सकता। सूर्य ग्रहण दोपहर के बाद होता है, लेकिन ये जो घटना है वो हर नो मून डे यानी अमावस्या पर नहीं होती है। अब 9.13 जो फिगर दिया है उसमें सोलर इक्लिप्स का चित्र दिखाई दे रहा है। किस तरह सन और अर्थ के बीच मून आया है और उसने एक पर्टिकुलर एरिया जो है सन का उसे कवर किया है, तो इसका जो शैडो अर्थ पर पड़ रहा है तो इसको हम सोलर इक्लिप्स कहते हैं। ल्यूनर इक्लिप्स. मून गेट्स लाइट फ्रॉम द सन. Thus, if the suns going towards moon are obstructed by the earth, then that part of moon remains dark. In nutshell,
That much part of Earth's shadow falls on moon. This part is not visible to us, which is called lunar eclipse. Such event occurs on full moon night, but such events do not take place on every full moon night. इसको हम चंद्र ग्रहण के नाम से जानते हैं। चंद्रमा सूर्य से प्रकाश लेता है। इस प्रकार चंद्रमा की ओर जाने वाला सूर्य प्रकाश में पृथ्वी जो है वो ऑब्स्टिकल बाधा डालती है। तब चंद्रमा का वो हिस्से में अंधेरा रहता है। तो अगर हम शॉर्ट में बात करें तो पृथ्वी की छाया का बहुत सा हिस्सा चंद्रमा पर पड़ता है और ये हिस्सा हमें दिखाई नहीं देता, जिसे हम चंद्र ग्रहण कहते हैं। तो इस तरह की घटना पूर्णिमा की रात को कहते हैं, लेकिन इस तरह की घटनाएं हर बार पूर्णिमा की रात को ही हो ऐसा नहीं है। तो 9.14 जो है वो ल्यूनर इक्लिप्स का डायग्राम है, जिसमें आप देख सकते हैं कि सन और मून के बीच अर्थ आ गई है और अर्थ बीच में आई है। तो जो सूर्य की रोशनी मून पे चंद्र पे पड़ नहीं रही, इसकी वजह से चांद से पूरा अंधेरा ही दिखता है पूरे अर्थ पे और उसके एक भाग पे, और इस तरह वहाँ पे चंद्र ग्रहण होता है। सो स्टूडेंट्स, here we have completed your chapter number 9.